Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start with a new topic, and this topic is about context-free grammars. And let's start with the introduction of context-free grammar in a few sentences. So every context-free language has context-free grammar. So now we are in the category of context-free languages. And one thing that you should have to keep in your mind that if you have a context-free language, then context-free grammar for that language can be produced. In other words, shortly, every context-free language CFL has the context-free grammar CFG. And what is context-free grammar? So context-free grammar is a simple recursive method, repetitive. So recursive method of specifying grammar rules or productions, and through those rules or productions you can produce strings of a language that is generating by that context-free grammar. So as we know that every context-free grammar has a context-free language, and in context-free grammar what you have to do, you have to build some grammar rules, and through that grammar rules you can parse different various legal strings from that CFG. This is the meaning of this point number 2. So in other words, if you have a CFG, then that CFG can produce a language which will contain two types of strings, which can handle two type of strings. The first is every legal string in the language can be derived from that grammar. This is one thing. Every legal string in that language can be derived from that grammar. And number two, no other illegal string can be generated from that grammar, which means that no any illegal string can be passed through that CFG. So here is an example of a CFG, and uh, this is something, the angle brackets you can see around each word. And if you have a sentence in any language, then you have to uh, you can annotate that sentence into the form of non-terminals and terminals. The words in a sentence are itself called terminals, and the other things, the variables, are basically called non-terminals. If you have the grammar rules like this, as you are seeing on this screen, then everything on the left hand side is an example of a non-terminal. And on the right hand side, in a CFG, non-terminals can also be introduced, and terminals can also be introduced on the right hand side. But on the left hand side, this is a rule that only non-terminal can be introduced. For example, here, sentence, your sentence will contain a noun phrase or a verb phrase. And here noun NP and VP is the non-terminal, sentence is also a non-terminal. For example, this is my sentence, a dog is barking loudly
in which A is article, dog is noun, is barking is verb, loudly is adverb. So, so you have to think deeply in your mind, and then you have to uh, think in terms of non-terminals and terminals, and then you have to write these non-terminals and terminals in the form of productions are the rules. And the format of the production or the rule is that you can introduce non-terminal on the left hand side, then this is the arrow which means implies, and then you can introduce non-terminal or terminal like here a am dog on the right hand side. So here sentence is going to be NP and VP, and then NP is going to noun phrase. This is a dog is a noun phrase here. So NP is a article and then noun. First is article and then noun. And VP is containing verb and then adverb. For example, this is barking is verb and this loudly is adverb. So the people who can understand the syntactic structure of a sentence can write these things quite easily, but the people who don't understand the syntactic structure uh, of a sentence in a language, then it is a little bit difficult for them. So then this is the article. These are non-terminals, and if these are the non-terminals, then non-terminals must end up finally with the terminal on the right hand side. So article employs a, which is this one, a, the, and these are the articles. Article can be an. Here I have written m, which is wrong actually. So this is an actually. And then noun is a dog. Noun can be dog. Noun can be man. Verb can be is talking. Verb can be is barking. Adverb is politely, or adverb is loudly here according to this sentence. Some extra terminals or tokens or words are also given here in this grammar, which means that this grammar can parse a dog is barking loudly, or a dog or a man is talking politely, or a dog is talking loudly, or a dog is talking politely. So everything is possible according to this grammar. So the main purpose of this example here is to give you the understanding of the CFG, that how can you write a CFG. So let's go move forward. And if you have a CFG, then we can parse a sentence through that CFG uh, into the form of a parse tree like here. So for example, if you want to draw a dog is barking loudly, then you can write a is an article here according to this grammar. A is an article here, and then dog is noun according to the grammar. Dog is noun, so you can just draw a line upward and then you can write this non-terminal noun. Is barking, which is encircled, is a verb according to this grammar. Is barking is a verb here. And similarly, loudly is adverb here. Loudly is adverb. So according to this grammar, you have annotated these words in a sentence. A dog is barking loudly into the form of their respective non-terminals. Now, this article and noun can form a noun phrase according to this grammar. This article and noun on the right hand side can form a noun phrase on the left hand side. So that's why you can annotate this in this way. And similarly, verb and adverb can form a VP according to this grammar. Verb and adverb can form a VP according to this grammar.
And now NP and VP can form a sentence. So you can see NP and VP can form a sentence. So this is basically called the parse tree of this sentence, a dog is barking loudly. And here in this annotation, the encircled items are the terminals, while the other things up above these terminals are the non-terminals. So now we have a concept of CFG, and how can we parse a sentence through that CFG into the form of a parse tree. Uh, and now move on to the proper definition of context-free grammar CFG. So a context-free grammar is a four tuple G, and where G is a set, four tuple set. G contains V for variables, sigma, V for variables or non-terminals, sigma for input simples, S for root of the grammar or root of the tree. As like here, this is the tree and this sentence is the root, or this is the grammar and this sentence is the starting point of this grammar or the root of this grammar. So S means the root of the grammar, and P is a set of productions, or P is a set of rules. For example, all these rules are known as P, which is a set of rules or set of productions. Anyhow, so let's move on. So context-free grammar is a four-tuple G containing V, sigma, SP, where V and sigma are disjoint finite sets. मुख्तलिफ किस्म के different finite limited sets हैं. Sets. S is an element of V. S is an element of V. S is the starting point of the grammar, but it is also the part of this V, which is a non-terminal. S is also a non-terminal. And P is a finite set of rules oblique productions. And these productions can be of the form A goes to alpha, where A is what and alpha is what, it is written here. Where A, which is on the left hand side, which is at the position of non-terminals, where A belongs to V, and V is a set of non-terminals. And L, this is on the right hand side, and we know that it can be a non-terminal, it can be a terminal or word. So alpha belongs to V union sigma. V is a non-terminal, sigma is the input symbols or words, and then whole star, which means any combination of this V and sigma. So alpha can be non-terminal or terminal, but A, which is on the left hand side, belongs to the set of non-terminals V. So this is the mathematical definition of the context-free grammar. And now, definition of context-free language. If we have a context-free grammar, then we know that we can generate then that grammar contains some language, and that language would be called as context-free language. But how can we describe that context-free language mathematically? Let's see this one. Let G is equal to V sigma SP. This is the notation of a grammar. So let G be a CFG, and if it is a CFG, the language generated by G would be annotated as L of G, language of grammar, is equal to, and then curly braces, is equal to X, which is some sort of a string. X belongs to sigma star. So sigma is the input symbols, and sigma star, which mean any combination of those input symbols, which would result in the form of a string. So that string is called X here. So X belongs to sigma star, and now such that
S. S is the starting point of the grammar. Starting point of the grammar, or the root of the parse tree, you can say. So S recursively derived to that string X from that grammar G. So this is the mathematical notation. So we will start, it means that we will start from the root of the grammar S, and then we will recursively drives towards the non-term towards the terminals, which will form the strings or the sentence, and we will drive the whole this thing by using the rules or the productions available in the grammar. So, and then when those strings will be derived from that grammar, then it means that we have generated those strings according to some language that is the language of that CFG. So that language will then be called as CFL, or context free language. So a language L is CFL. We can call a language L a context free language if there is a CFG G like here. So if we have a CFG, then the language of that CFG would be called as CFL, such that now it's a mathematical form, so that any L language L is equal to language of grammar. If we have a language that is the language of that grammar, then that language would be called as CFL, and mathematically we can write it as like this. Now move on to some examples. This is a very easy example, and the language given to us is the language about algebraic expressions. Algebraic expressions means the mathematical statement that you normally use in your programming languages, or that you normally use in your uh, mathematical work or rough work on your paper, etc., etc. So we have a so if we have to form a grammar for these algebraic expression, then these algebraic expression normally contain plus sign between operands, minus sign, multiplication sign, division, and at some position these algebraic expression also contains parentheses and some operands or input symbols. So we have, so we can, this S is the root of the grammar, or the starting point of the CFG. So we can write a rule like S goes to S plus S, or it means or you can say it is another production. S goes to S minus S, S goes to S multiplied by S, S goes to S divided by S. These are the four mathematical operations. This is the not very much detailed example of an algebraic expression. It is only handling four basic uh, uh, operators, mathematical operators: plus, minus, multiplication, and division. And then S goes to parentheses. If we want to give some portion of an algebraic expression a preference, then we can use then we normally use parentheses. So that is the purpose. For that purpose, we have this production here. S goes to parentheses and then S. And S goes to A, which is a terminal. All other things are the non-terminals. Now, now we are taking a string, and then we will parse this string, or we will derive this string from this grammar. So the string given to us is A plus A multiplied A parentheses divided by A minus A.
So how can we derive this string from this grammar? It is mentioned here. No doubt this is the starting point, so we always has to start from this starting point. So that's why we can write s goes to s minus s, or s plus s, as s multiplied as s divided by s. It is up to you. So here, for example, we have started from s implies s minus s. We have to generate this string for from this grammar. So now we have started from this point, s goes to s minus s, and now we are selecting this left. I can use the annotation, but yes, let's see. So so now this s is selected, and then I know that s can be again expanded to s goes to s minus. First I used this one, and now I am using this one, s plus s. So s goes to s plus s, like this, and this is the remaining portion minus s. And now I am using this production, s goes to a. So that's why this a is here. And now I am expanding this s by using this production. So a plus this s is goes to s divided by s here. And now I am using this s, and I am expanding this s by using this production. S goes to S goes to A plus parenthesis S divided S minus S. Rest of the things are the same. And now I am expanding this S again with S multiplied by S here by using that production rule. And now I have almost, and I am doing all these things according to this string and the things in this string. So now this is a plus, okay, a parenthesis, and then multiplication, parenthesis, multiplication, division, as a minus a, now it is okay. And now I have to change these non-terminals into terminals. So now I can change this s into a. S goes to a, so I can change this a here. And then in the next step, I can change this s a here, and in the next step I can change this s a here, and in the next step I can change this s into a, and now I have my string finally produced or derived or generated from this grammar. Now move on to the next example, and I can clear this annotation also. So next is an example. Irregular expression is given to you, which is a star. So the terminal is, so the input symbol is a and then star, which means it can produce null, it can produce a single a, it can produce a double a, triple a, quad, penta, hexa, and so on. Quadruple, and so on. So now you can produce strings with a by using any number of times the repetition of a in it. So how can we write a CFG for this sort of regular expression? I can start with S, and then S goes to A,
which is this symbol, and then S. I am repeating this S. So if I want to produce only single A, then I know that S goes to A, and then I will again select S goes to this null, and then only single A will be produced. And if I want to produce um, double A, then I can use S goes to AS, and then again S goes to AS. Now double A is produced, and then the final S, I will use this production S goes to null, and in this way double A will be produced. So this is all right. This is perfect. There is no issue in this grammar for this string or for this regular expression. This is not a string, this is a regular expression. So this grammar now produce a null string. S goes to null by using this production, or this grammar can produce any number of A's by using this part of the production, A into S, and S is repeated here. Now move on to the next example. So now the regular expression is A star B star. So which means I can produce null string. I can produce null string. I can produce single A. I can produce single B. I can produce AB or triple AB or double AB or A triple B and so on. So one thing that we know that null can also be produced. So here it is written as S goes to AB, and this AB is non-terminal. A and B are the non-terminals. And then A is the A, and then A goes to small a and capital A, and this A is terminal and this A is non-terminal, just like previous example. So A is repeated. I can call A this production again and again. So this is recursive production. Which means that, okay, this is A, and I can produce this small a and this A again according to the production, and I can call this A again by using this production, and I can produce A and this A again, and I can also use this A goes to null. I can also use this A goes to null, like this, and so on. It is only double A. I can repeat it with triple A, quadruple A, and so on. So this production is handling only this part. And similarly, B goes to B and capital B. This is terminal and this is the non-terminal. And this is handling basically B star. B star. When and also B is equal to null. So this complete production is handling B star. So so B goes to BB or B goes to null. This is for A, this is for the handling of B. And then S goes to AB. You are connecting this A and B here with this S, A and B. I don't have the resources, otherwise it would be very easy for me to explain these things on a whiteboard. So
But this is the drawback of the online classes. So keep this thing as a drawback. Anyhow, this question can arise in your minds that how you select or how you know that S is going to A, B, and then A is going to this thing and that thing. So the simple answer of this question is just to use your mind, and having a hit and trial approach, you will finally approach at this conclusion, or you will finally design something like that. Okay. इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, ए प्लस बी और होल स्टार। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लैंग्वेज यूज करें ताकि थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस के ड्रॉबैक को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर सकूं। तो ए प्लस बी होल स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसके लिए आपने ग्रामर बनानी है। तो जब किसी चीज के ऊपर स्टार हो, जब कोई स्ट्रिंग नल हो सकती हो, तो एक तो जेन में रखना है कि ये जो एस है इसके अंदर कोई नल प्रोडक्शन कहीं ना कहीं होगी जो नल को हैंडल कर रही हो। और बाकी ये ए है, एक इनपुट सिंबल, दूसरा बी है, तो प्रोडक्शंस में ए और बी भी कहीं आ रहे होंगे, ये भी आपने जहन में रखना है। और यहाँ पे अगर आप इसको कोशिश करें कि इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो सकती है, तो एक नल हो सकती है, अकेला ए भी हो सकता है, अकेला बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एस गोज टू ए एस, ये तो सिर्फ पोर्शन ए को हैंडल कर रहा है कि बार बार आप एस गोज टू ए एस और फिर एस गोज टू ए एस करते जाएं, जितनी दफा मर्जी आप ए ले लें, सिर्फ ए प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ए जितनी दफा मर्जी प्रोड्यूस यहाँ से करना चाहें हम कर सकते हैं, तो ये तो चलो एक लिहाज से ठीक है। तो इसी तरह बी की भी बना लें, या और का सिंबल देके यहीं लिख लें या दोबारा लिख लें एस गोज टू बी एस, ये आपकी मर्जी है। तो एस गोज टू बी एस जब आप लिखेंगे तो बी एस जो है एनी नंबर ऑफ रिपीटिशन जो बी की है उसको कंट्रोल कर रहा है, और बी एस से आप फिर दोबारा इसको कॉल करते जाएं। या अब इसमें एस, अब इन प्रोडक्शन में ए एस ए एस ए एस, या ए एस के बाद एस के एस को कॉल कर लें, बी एस, ए और बी को रिपीट किया जा सकता है। ए को भी रिपीट कर सकते हैं आप एस ए एस से, लेकिन उसके बाद एस ए एस और फिर एस को दोबारा ये बी एस कॉल कर लें, तो ए के अंदर बी भी मिक्स किया जा सकता है इन दो प्रोडक्शंस में। इसके अंदर ए के अंदर बी मिक्स किया जा सकता है, इसके अंदर बी के अंदर ए मिक्स किया जा सकता है। तो जब मिक्स किया जा सकता है तो इसका मतलब है एनी नंबर ऑफ ए और बी के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आप दोनों इन दो प्रोडक्शंस में कवर कर जाते हैं। अच्छा, अगर कवर कर जाते हैं तो बाकी फिर रह गया सिर्फ नल, तो फिर एस गुड और नल भी लिख दें। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होने से आपको थोड़ा सा शायद थोड़ा ज़्यादा समझ आए। आगे एग्जांपल है, आगे रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है जी, ए स्टार बी बी। इसके लिए आपने सी एफ जी बनानी है। अब इसके अंदर नल प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये ए स्टार है, ये इस वाली, और ये बी बी हर सूरत में है ही है। अब जो भी स्ट्रिंग बन रही है हर सूरत में क्या है, उस वो नल, ये नल नहीं हो सकती है इस रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग। हाँ, ये वाला जो पोर्शन ए का है ये नल जरूर हो सकता है, ये नल जरूर हो सकता है। तो हम देखेंगे कहाँ नल की जरूरत है, ओवरऑल एस गोज टू नल की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर भी ए और बी है, ये ए स्टार को तो आप एस गोज टू ए एस से उसी तरह हैंडल कर लेंगे जैसे ये ए एस था। बी बी चूंकि फिक्स्ड है तो वो आप उसको भी, इसकी प्रोडक्शन बी गोज टू बी बी, ये फिक्स्ड है। आपने ये नॉन टर्मिनल है और ये बी बी टर्मिनल है, बी गोज टू बी बी फिक्स्ड है, आपने फिक्स प्रोड्यूस कर ली।
और ए स्टार की आपने प्रोड्यूस कर ली, ए गोज टू ए और कैपिटल ए, ये इसी को रिपीट किया ताकि रिकर्सिव हो जाए, क्योंकि ये रिकर्सिव था, ए स्टार था। तो रिकर्सिव स्टेटमेंट बनाना बड़ी आसान है, प्रोडक्शन बनाना। तो ए गोज टू ए स्टार हो गया, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ए जितनी दफा मर्जी कर ले। ये नल भी हो सकता था ये वाला पोर्शन, तो इसीलिए ए गोज टू ए और नल, ये सिर्फ नल इसके साथ है, ए के साथ, ये निचली के साथ नहीं है। ये थोड़ा बोर्ड मार्कर से लिखा गया है तो ये नीचे चला गया है। ये नल, ये सिर्फ ए जो है वो नल भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि ये पोर्शन नल भी हो सकता है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए भी हो सकता है, और ये जो ये ग्रामर रूल या प्रोडक्शन जो है ये इसको हैंडल कर रही है, और बी को ये हैंडल कर रही है। अब इन दोनों की तरतीब पहले ए है बी है, बस इसको एस के अंदर फिट कर दें, एस गोज टू ए और बी, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब कोई स्ट्रिंग लेके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए बी हम स्ट्रिंग लेते हैं कि क्या ये ट्रिपल ए बी जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से ट्रिपल ए और बी जो कि लीगल स्ट्रिंग है, क्या इसमें से पास हो रही है। पार्स होने के लिए आप या ड्राइव करते हैं या पार्स ट्री बनाते हैं। पार्स ट्री ये वाली है, और डेरिवेशन से मुराद ये वाला काम है, ये जो आपने किया था ये डेरिवेशन की थी इस स्ट्रिंग की और ये पार्स ट्री। तो आप जरा बनाएं, तो एस गोज टू ए बी, स्टार्ट तो यहीं से लेना है, तो एस गोज टू ए बी और ए गोज टू, फिर आप ए कॉल कर लें, ये 3 दफा ए है तो 3 दफा कॉल होगा, फिर ए गोज टू ए कॉल करें, फिर ए गोज टू ए का, ये 3 एज तो आ गए स्ट्रिंग के, और इस ए को आप नल कर दें, इस प्रोडक्शन को कॉल करके ये नल कर दिया, और यहाँ बी गोज टू बी फिक्स्ड है तो ये बी आपने लगा दिया, तो ये सारी स्ट्रिंग आपकी इसमें से, ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाली जो स्ट्रिंग थी ये, अब आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा ऐसी, ये वाली जो स्ट्रिंग है आप देख रहे हैं कि ये ट्रिपल ए यहाँ पे आ चुका है, ये तो नल है, नल जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी कि ये नल हो गया, इसमें बस इसकी कोई हैसियत ही नहीं, और ये बी ये टर्मिनल्स अब इसके अंदर आ गए, ये स्ट्रिंग इसके अंदर पास हो रही है एग्जैक्टली, नल से कोई फर्क नहीं, नल के मीन्स खत्म वहां पे सिलसिले सारे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे है जी एक और एग्जांपल, स्ट्रिंग्स डबल ए मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती हैं, बस जो ये वाली स्ट्रिंग है डबल ए, ये वाली जो स्ट्रिंग है, सॉरी, ये जो स्ट्रिंग है डबल ए, ये स्ट्रिंग का पार्ट होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, अगर उसमें इंक्लूड होनी चाहिए तो ये ए है, और उसके शुरू में भी कुछ हो सकता है, बाद में भी कुछ हो सकता है, इसलिए लिखा गया, जैसे मर्जी शुरू कर ले। ए इज द पार्ट एक्चुअली, ए अभी ये स्ट्रिंग नल नहीं हो सकती, स्ट्रिंग नल नहीं हो सकती, तो स्ट्रिंग होगी कोई और ए उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, तो ये ए हमने कह दिया, और ये उसके शुरू में कुछ हो सकता है, बाद में कुछ हो सकता है, वो हमने नॉन टर्मिनल बना लिए एक्स, एक्स है जी ये। अब ये वाला x जो है, x गोज टू ए एक्स, यानी कि a की रिपीटेशन, a को बार बार रिपीट किया जा सकता है, और x गोज टू बी एक्स भी हमने लिख दिया, ये x गोज टू बी एक्स, x, अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब तो ये है कि ए एक्स और फिर x के मैं बी एक्स भी कॉल कर सकता हूँ, a और b मिक्स किए जा सकते हैं इन दोनों की में से, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, वो पीछे ए प्लस बी होल स्टार वाली बात, कोई भी सारे कॉम्बिनेशन हैंडल हो गया, गुड, मुझे भी यही चाहिए सारे कॉम्बिनेशन। और फिर कहीं एक्स को कहीं आप नल करते हैं कहीं पे जाके, तो अब इसके अंदर एक्स को नल भी कर दें तब भी ए जरूर बचा रहेगा, तो फिर एक्स को आप नल करने की भी जरूरत है, तो ये एक्स नल भी आ गया। अब एक स्ट्रिंग जो कि लीगल होगी, ए बी और डबल ए इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये डबल ए इसके अंदर इंक्लूडेड है, ए बी डबल ए बी, तो अब ये स्टार्ट लिया जी, एस इज इक्वल टू एक्स ए एक्स,
अब इधर मैंने ए तो आ गया, इधर मैंने ए बी बनाना है, तो x इज इक्वल टू ए एक्स कॉल की, ये x इज इक्वल टू ए एक्स वाली ये कॉल कर ली, और फिर x इज इक्वल टू ए बी बनाना है, बी एक्स कॉल कर ली, तो ये ए बी बन गया मेरा, और इस x को आप नल कर देते हैं। इसी तरह मुझे इधर बी बी बनाना है, तो बी बी यहाँ पे फिक्स नहीं है, x इज इक्वल टू बी एक्स, फिर x इज इक्वल टू बी एक्स दोबारा कॉल, और फिर आखिरी x को नल कर दे, ये मेरा बी 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 बन गया। ए बी, ए और बी बी, ये मेरी स्ट्रिंग इसमें से पास हो जाती है इस ग्रामर में से, इस ग्रामर में से। आगे देखें जी। आगे एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है जी, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। बी स्ट्रिंग्स के अंदर लैंग्वेज के, एक लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी, और उन स्ट्रिंग्स के अंदर एज और बीज की जो तादाद है, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज की जो तादाद है, इवन नंबर ऑफ एज भी इवन होने चाहिए, बीज भी इवन होने चाहिए। ए अगर 2 हैं और बीज आपके 6 हैं तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों इवन है, और दोनों 2 2 हैं तब भी ठीक है। तो इसकी यानी कि आपने ग्रामर बनानी है। थोड़ी सी चीज़ें ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, बहरहाल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो जिस तरह शुरू में आपको एफ ए नहीं आता था और एक वक्त आगे आप एफ ए बनाना शुरू हो गए हैं, तो इसी तरह आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक वक्त आएगा आप ये ग्रामर्स बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, सॉरी। इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज, और ये एज इकट्ठे भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में बताया गया डबल ए, बी ए, फिर बी बी, फिर ए बी। अब इसमें एज कितने हैं? 4, बीज कितने हैं? 4, कोई इश्यू नहीं। तो यानी कि एज इकट्ठे भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। तो इकट्ठे हो सकते हैं तो मैंने लिखा बी गोज टू ए, ए भी हो सकता है या बी बी भी हो सकता है। एक तो ग्रामर, एक प्रोडक्शन तो ये तो समझे ना, बाकी ये बाद में समझ। इकट्ठे भी एज हो सकते हैं, बीज भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये एक तो ये रही। और फिर देखें कि ए बी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बी ए का भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यू जो है वो ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, ऐसे लिख लिया। ये तो चलो आपने लिख लिया, एक्चुअल ये है, ये चीज़ है। अब उसने कहा, हमने लिखा जी एस जो हमारा स्टार्टिंग है ये गोज टू एस एस हो सकता है। जरा रिपीट करवाया ताकि बार बार रिपीटेशन होती रहे। एस गोज टू एस एस। अब ये ए शुरू में भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। बी गोज टू ए, बी बी ए। तो हमने फिर किया एस गोज टू बी एस करते हैं। ये जो बी है ये बी एस, ये भी हो सकता है, और ये बी ए हो जाएगा या बी बी, कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, दोनों हैंडल हो जाएंगे। एज भी शुरू में, बीज भी शुरू में। और एस गोज टू एस बी, और ये एज एंड में या बीज एंड में, ये भी हैंडल हो जाएंगे इसमें। और कहीं पे रोकना है, ये नल तो रोकने के लिए है, कहीं पे रोकना है तो नल इसलिए जरूरी है कि नल को करके बैलेंस करने के लिए। वरना यहाँ पे ये बात नहीं है कि भी इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि भी नल भी प्रोड्यूस करती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये इसलिए कहीं हमें रोकने की जरूरत भी पड़ जाती है, जो एस गोज टू नल आप करते हैं जैसे नीचे किया हो। अब यहाँ पे एस गोज टू यू एस यू, ये ए बी और ये बी ए था यू, ये ए बी शुरू में भी हो सकता है और ये ए बी एंड में भी हो सकता है, बी ए शुरू में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, तो इसलिए लिखा यू एस यू। ये वाला पोर्शन भी हैंडल कर ले। फिक्स्ड ए और बी बी को यहाँ हैंडल किया, और जो मुख्तलिफ तरह की शुरू में चीजें आ सकती हैं उनको यहाँ हैंडल किया। अब जरा एक स्ट्रिंग लेके उसको चेक भी करते हैं कि क्या ये हमारा ठीक है या गलत है।
और आपके सवाल इसी तरह कोई सवाल होगा तो उसको अगर मैंने गलत करना है तो मुझे उसमें से कोई ऐसी लीगल स्ट्रिंग पास करनी है जो कि उसमें से पार्स ना हो रही हो, या कोई इलीगल स्ट्रिंग है जो उसमें से पार्स हो रही है, अगर पार्स हो जाए, जिस तरह एफए को निगेट करते हैं इसी तरह मैंने आपकी ग्रामर को भी उसी तरह निगेट करना है। तो चलें जी, अब ये प्रोडक्शंस कंप्लीट हुए, ये वाली स्ट्रिंग है, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। अब मेरे जेहन में है कि ये डबल ए शुरू में आ रहा है, तो एस गोज टू, पहले तो हम एस एस करते हैं ताकि ज़रा फैले, इसलिए डबल एस लिखा, तो फैलाएं तो सही इसको। एस गोज टू, एक ही एस लिख देंगे तो फिर बार बार एक एस ही करते जाएंगे, एस गोज टू एक्स, लंबी सी ट्री बनती जाएगी। तो एस गोज टू डबल एस किया, फिर एक एस को मैं कर रहा हूँ बी एस कर रहा हूँ, ये वाला बी एस, और इस बी को आप ए पे ले जाते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोडक्शन रूल। मैं अभी एनोटेशन ऑन करता हूँ। बाय यूजिंग, ये जो डबल ए है ये इस प्रोडक्शन रूल को यूज करते हुए आप कर रहे हैं, बी एस, और इस एस को आप इसके ऊपर वो यू एस यू वाली प्रोडक्शन जो है वो यूज कर जाते हैं, ये वाली, ये जो प्रोडक्शन है ये यू एस यू लिखी हुई है, ये आप यूज कर जाते हैं यहाँ पे। मैं अब फिर दोबारा उसका नोटेशन को यू एस यू यूज कर जाते हैं। अब ये वाला यू अब ए हो गया, इस स्ट्रिंग के अंदर आपका ए हो गया, उसके बाद क्या है बी ए, ये वाला पोर्शन शुरू हो रहा है बी ए, तो यू एस यू गोज टू बी ए, हमारे पास प्रोडक्शन थी ऊपर, यू गोज टू ये बी ए, हमारे पास ऊपर प्रोडक्शन थी। इसको मैं किधर करूं जी, ये u गोज टू ए बी, ये ए बी और बी ए दो हमारे पास प्रोडक्शंस थी, तो u गोज टू, ये अब आप मेरे पास आगे बी ए है, तो मैं u गोज टू बी ए वाली प्रोडक्शन ये यूज करता हूँ, u गोज टू बी ए, और s को उसके बाद मेरे पास बी बी फिक्स्ड है, फिक्स्ड, तो मैं s गोज टू बी एस यूज कर जाता हूँ, ये वाली प्रोडक्शन दोबारा बी एस और बी बी, और ये बी गोज टू बी बी, ये वाला पोर्शन यूज करते इसको फिक्स कर देता हूँ, इस एस को नल, इसलिए मैं कह रहा था कि नल की जरूरत पड़ती है तो इसलिए नल किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये नल किया हुआ है, वरना और कोई वजह नहीं है कहीं पे उसको रोकने की जरूरत पड़ती है, नल कर दिया। अच्छा, ये बी बी हो गया, अब उसके बाद ए बी है, तो ये यू गोज टू ए बी कर दिया, और इस आखिरी की अब जरूरत नहीं फैलाने की, इसको नल कर दिया। तो ये जो ट्री हमने इस बनाई है, इस ट्री के, इस ग्रामर के लिए, ये डिफरेंट भी हो सकती है, आप किसी और तरीके से भी ट्री बना सकते हैं, किसी और तरीके से भी स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह आप ये जो ग्रामर बनाते हैं, ये ग्रामर बनाने का आपका अपना कोई और तरीका भी हो सकता है, कोई और टर्मिनल्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ और किसी और स्ट्रक्चर, इसकी जो साख्त है, आगे लेफ्ट राइट मूव होना, इधर होना, तो ये डिफरेंट हो सकती है, ये कोई इशू नहीं है, बस शर्त ये है कि वो ठीक हो। ठीक होने की शर्त क्या है, तमाम लीगल स्ट्रिंग पास हों और तमाम इलीगल स्ट्रिंग पास ना हो, ये शर्त। जी आगे चलते हैं। आगे एक एग्जांपल है जी, एस गोज टू, ये पैरेंथेसिस एस, एस इम्प्रॉपर सेट है, एस का एस नेगेशन एस भी हो सकता है, और एस गोज टू पी भी हो सकता है, एस गोज टू क्यू भी हो सकती है। तो ये कोई ग्रामर दी हुई है, और मैं कह रहा हूँ कि ड्राइव 13 लेटर वर्ड, ये एक वर्ड है, इसके अंदर 13 लेटर्स हैं, करेक्टर्स हैं, इसको इसमें से जरा पार्स तो करके दिखाओ, डेरिवे ड्राइव करके दिखाओ पार्स। तो आप क्या करेंगे, ये आपने ड्राइव करना है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने इस तरह ड्राइव करना है, स्ट्रिंग लेके ग्रामर दी हुई है, आपने उसमें से पार्स करके दिखाना, फाइनल में आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगी। ये वाला जो होमवर्क है ये आपने इस तरह करना है। इस तरह जी, आगे एग्जांपल है, लैंग्वेज दी हुई है आपको, L इज इक्वल टू एक्स, कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिलोंग्स टू 0 और 1,
का एनी कम्बिनेशन, स्टार है, एनी कम्बिनेशन 0 और 1 से बनी हुई कोई स्ट्रिंग्स है जिसमें सच दैट जिसमें नंबर ऑफ जीरोज इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन एक्स। इसका मतलब क्या है कि उस स्ट्रिंग में जीरोज और वंस की जो तादाद है वो बराबर है। 3 जीरोज हैं तो 3 ही वंस हैं, 2 जीरोज हैं तो 2 ही वंस हैं, इस तरह करके उसमें सिलसिला आ रहा है। तो इसके लिए जरा ग्रामर तो बनाएं। तो यहाँ ग्रामर बनी हुई है जी, आपके सामने है। आपको पता है जीरो शुरू में भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग के बाद में भी आ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 0s1 कर दिया आपने, शुरू में भी आ सकता है, बाद में शुरू में 1 भी आ सकता है, 0 इधर भी जा सकता है, तो 1 इधर भी आ सकता है। ये वाली दूसरी पोजीशन को भी आपने हैंडल किया, 0s1 और 10s, और फिर आप एस को रिपीट कराते जाएं बार बार, तो आपका ये काम तो हो जाएगा। इसमें 0 और 1 यहाँ बराबर हो गए ना, इधर 0 एक दफ़ा आया, इधर 1 भी आ गया, इधर एक दफ़ा आया तो इधर 0 भी आ गया। जितनी दफ़ा मर्जी इसको कॉल करें, ये तादाद बराबर ही रखेगा उसकी, जीरोज और 1 की। और एस गोज टू आपने एस एस कर दिया ताकि ज़रा अगर फैलाना है ट्री को और कहीं पे उसको नल करना है तो ये नल भी। अब जैसे एक स्ट्रिंग है ये 100011101, अब इसकी देखते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने मुकम्मल तौर पे सारे स्टेप्स नहीं बनाए, यहाँ पे शॉर्टली बना दिया, स्किप किए हुए हैं यहाँ से, यहाँ पे स्टेप्स। यहाँ लिखा हुआ है जी एस गोज टू, ये देख लें एस गोज टू। अब मैं एनोटेशन नहीं करूंगा, थोड़ा सा अपने जहन को जरा तेज भी करें। एस गोज टू डबल एस, ये वाली प्रोडक्शन यूज की, ये इस स्ट्रिंग के लिए हम ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रिंग को। एस गोज टू डबल एस किया, उसके अंदर फिर इस एस को फिर डबल एस कर दिया, 4 दफा एस आ गया। एक एस को हमने नल कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने शो नहीं किया हुआ, बस ट्रिपल एस मुझे यूज करना है। आप 4s यूज करना चाहते हैं तो कर जाएं, अगर आप 4s से ड्राइव करना चाहते हैं, लेकिन एक एस को मैंने नल कर दिया। वरना कुछ लोग सोचते रहेंगे ये डबल एस से ट्रिपल एस कैसे आ गया। तो ऊपर लिखा हुआ है सम स्टेप्स आर स्किप्ड है, कुछ स्टेप्स जो है ना मैंने अब स्किप कर दिए हैं, नहीं लिखा जाता इतना लंबा चौड़ा। अभी भी ये और करके इसको शॉर्ट किया हुआ है, वरना तरीका तो ये एस गोज टू एस एस लिखें, फिर एस गोज टू 0s1 लिखे नीचे, फिर एस गोज टू 1s0, फिर एस गोज टू नल। तो इसके अंदर 1 2 3 4 प्रोडक्शन है इस ग्रामर के अंदर, लेकिन उसको एक ही लाइन में लिखा हुआ है शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ पे एस गोज टू डबल एस, फिर एस को फिर खोलेंगे तो 4 दफा एस हो जाएगा। इस एक एस को हमने नल किया हुआ है तो ट्रिपल एस रह गया हमारे पास। अब एक पहले एस को खोल दिया ये 1s0 वाली प्रोडक्शन यूज करके, फिर मैं यूज कर लेता हूं ये एक एस जो है इसको खोल दिया ये 1s0 वाली प्रोडक्शन यूज करके, दूसरे एस को खोल दिया 0s1 वाली प्रोडक्शन यूज करके, और तीसरे एस को खोल दिया 0s1 की प्रोडक्शन यूज करके। ये प्रोडक्शन कहाँ से देखी है आपने, ये यहाँ से देखी, ये प्रोडक्शन लिखी हुई है 1s0 और 0s0। अच्छा, स्ट्रिंग बनानी है मुझे ये वाली 10000, तो ये 1 तो आ गया, इधर 000 कुछ आना चाहिए। तो ये 1 इस एस को आपने क्या कर दिया है जी, नल कर दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। इस एस को आपने क्या कर दिया, इस एस को आपने यहाँ पे नल कर दिया, 1 नल 0, और यहाँ पे 0s1, और इस एस को आपने दोबारा ओपन कर लिया है 0s1 में, और ये वैसे ही है, और ये वाला आखिरी पोर्शन वैसे ही है। अब फिर 1, ये नल तो खत्म, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, नल खत्म 1 0, और ये 00 इसके अंदर आ गया इस 00 की वजह से ये। तो ये 000 1 000 स्ट्रिंग के तो ये पूरे हो गए। उसके बाद 11 होना चाहिए, इसलिए मैंने इस एस को नल किया, ये जो एस है इसको नल कर दें आप, ये यहाँ पे नल हुआ है। उसके बाद 11 है, ये 11 और ये 11 बराबर हुए आपस में, और 11 के बाद मुझे सिर्फ 01 चाहिए, तो ये 01 इसके अंदर है, हम सिर्फ एस को नल कर देंगे,
और ये हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी ड्राइव होके। तो इसको बोलते हैं डेरिवेशन, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। ये लैंग्वेज दी हुई थी, ये उसकी ग्रामर है, ये एक स्ट्रिंग है, उसको हमने फिर इसमें से ड्राइव किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जिस तरह फिज वगैरह के लिए उसी तरह एक थ्योरम है आपका बुक में, अगर आप देखें कि दो लैंग्वेजेस हैं आपके पास L1 और L2 और दोनों ही कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, तो फिर उनका यूनियन, उनकी कंकैटिनेशन और उनका क्लीन स्टार वो भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगा। जिस तरह रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर तीनों और हमने कहा था कि उनके रेगुलर लैंग्वेजेस का यूनियन, कंकैटिनेशन और क्लीन स्टार भी रेगुलर होता है, इसी तरह कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का यूनियन ले लैंग्वेजेस के दरमियान, दो लैंग्वेजेस के दरमियान कंकैटिनेट करें या किसी लैंग्वेज या क्लीन स्टार लें, वो भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होती है। ये स्टेटमेंट आपको बस याद रखनी है। अल्लाह आपको तौफीक दे, जब एमएमएस करेंगे तो ये इन्हीं थ्योरम्स को बड़े डिटेल में देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इनकी एडवांस फॉर्म बहुत डिटेल में देख रहे होंगे। आगे एक एग्जांपल है जी, ए CFG इक्विवेलेंट टू RE। एक अप्रोच आपको बताई गई है कि बाज़ औक़ात आप इस तरह भी सोच सकते हैं, आपने कोई ग्रामर बनानी है ना, तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो 0 1 1 प्लस 1 होल स्टार और 0 1 इस तरह करके दिया हुआ हो रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो गया हो, तो आप सबसे पहले क्या सोचें, आप पहले तो उनके छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर सोचना शुरू कर दें कि इसके अंदर एक 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 पोर्शन है, इसके अंदर 0 1 1, एक पोर्शन है इसके अंदर 1, पहले यानी कि ये पहले इनके कुछ बनने चाहिए, फिर उसके दरमियान में प्लस का कुछ बनना चाहिए, फिर उसके ऊपर होल स्टार का कुछ बनना चाहिए, फिर एक पोर्शन है 0 1 और ये इसके आप फिर होल स्टार है। मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूँ ताकि ये आपको नजर आए। एक पोर्शन ये है 0 1 और एक पोर्शन ये है, तो आप लिख सकते हैं A गोज टू 0 1 1 और 1, ये इन दोनों को हैंडल कर जाएगा, बाकी प्लस या स्टार को हैंडल नहीं कर रहेगा, बस ये 0 1 1 स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है या 1 जनरेट कर सकता है। चलें जी, इस पोर्शन को अभी लाइन लगाएं, अभी इतना सोच लिया, अब इसके ऊपर सोचना है, जब ये हो जाए तो उसके बाद ये अब इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम ये है 0 1 1 कामा 1 और इसका ऊपर स्टार, अगर मैं इसको लिख लूँ 0 1 1 कामा 1 और इसका स्टार, तो इसका भी यही मतलब है, कामे का मतलब प्लस ही होता है, यूनियन या ये या वो, यूनियन कह रहा हूँ गलत। और तो ये जो A011 और ये तो दोबारा मैंने यहाँ पे लिख ली, दोबारा लिखी हुई है, अब इनका मैंने जरा रिपीटिशन करवानी है, तो मैं क्या कर दूं, B गोज टू A, ये वाला A और फिर ये B जो यहाँ पे था उसको दोबारा कॉल कर दें तो ये रिकर्सिव हो जाता है, ये स्टार के इक्विवेलेंट हो जाता है, रिकर्सिव हो जाता है। ये जो नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट हैंड साइड पे भी यूज कर जाएं तो आप रिकर्सिव हो जाती है वो चीज़ कि आप फिर उसको कॉल कर रहे हैं, फिर उसको कॉल कर रहे हैं। और ए ये है, तो ये 0 1 1 और 1 इसके जरिए आ जाएगा कि चाहे 0 1 1 ले लें या 1 जितनी दफ़ा मर्जी ले लें, कॉल करते जाएं, लेते जाएं। तो ये बी गोज टू ए बी या नल, क्योंकि ये ऊपर स्टार है तो ये नल हो सकता है या बी गोज टू ए बी रिकर्सिव हो सकता है। तो आपने इसके जरिए आपने ये 0 1 1 प्लस 1 होल स्टार इतना पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया अभी तक, इस तरह सोचते हुए चलें। इसको भी अभी लाइन लगाएं, अभी हम स्टेप्स में सोच रहे हैं, स्टेप्स में। अब इसका सोचें कि ये फॉर एग्जांपल कोई डी गोज टू 0 1 हो सकता है और ऊपर स्टार है, तो इसका मतलब है कोई और टर्मिनल यूज कर लें, सी गोज टू डी, कोई और नॉन टर्मिनल यूज कर रहे हैं, सी गोज टू ये वाला डी और इस सी को दोबारा कॉल कर लें रिकर्सिव और नल भी कर लें, तो ये 0 1 स्टार हो जाएगा। इसको जनरेट कर रहे हैं ये ग्रामर, इसको भी खत्म कर। अब जब आप सारी बना चुके हैं तो अब बस सिर्फ एक रूट की जरूरत है, बाकी ग्रामर आप ऑलमोस्ट बना चुके हैं, ये वाला पोर्शन भी बना चुके हैं, ये वाला पोर्शन भी बना चुके हैं, इनको बस आगे पीछे लगाना है
और आप बात खत्म हो जाएगी आपकी ग्रामर की। तो इस तरह भी आप सोच सकते हैं। अभी बता रहा है अभी आपको, अभी हम और देखते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें, ये d गोज़ टू 0 1 ये यहाँ पे लिखी है आपने, और इसी तरह ये c गोज़ टू dc और नल ये यहाँ पे लिखी हुई है आपने। अब फाइनली लिख रहे हैं, a गोज़ टू 0 1 ये आपने इधर लिख ली दोबारा, b गोज़ टू ab नल ये आपने इधर लिख ली। अब आपको सिर्फ एक प्रोडक्शन की ज़रूरत है, बस इनको कनेक्ट करना है आपने, और वो प्रोडक्शन किसको कनेक्ट करेगी? एक इसको कनेक्ट करेगी और एक इसको, ये जो रिपीटिशन वाले। तो S गोज़ टू B और C को कनेक्ट कर दे। बाकी तो वो खुद ही इनके अंदर A कॉल हो रहे हैं, दूसरी इनके अंदर ये A जो है ये इसके अंदर कॉल हो रही है, ये D इसके अंदर कॉल हो रही है, और ये फिर इसके अंदर मजीद कॉल हो रही है। आपस में इस तरह कनेक्शन बना हुआ है, S गोज़ टू B C। और ये आपकी ग्रामर फिर मुकम्मल हो जाती है, जो कि आपके ये वाले जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट CFG प्रोड्यूस करेगी। ये यहाँ पे है, ये कौन सी है वो, मैं अगर इसको क्लियर करूं पहले, सिर्फ ये वाली अब फाइनल ग्रामर है आपकी। पहले वो स्टेप्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप उसको लेके आए, ये वाली फाइनल ग्रामर है। सिमिलरली CFG कैन बी ऑब्टेन्ड, यहाँ भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये मैं इसको क्लियर कर लूँ ड्राइंग को। यहाँ कह रहे हैं जी, जैसे आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन से ग्रामर ऑब्टेन की है, वो इसी तरह कर रहा है। सिमिलरली CFG कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपली थ्रू सम FA। इसी तरह वो कह रहा है कि आप FA से भी CFG ऑब्टेन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सिंपल लॉजिक यूज करते हुए। वो FA वाले हमने पीछे कुछ किए थे जब FA के पोर्शन में थे। FA से रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते थे, या रेगुलर एक्सप्रेशन से FA बना लेते थे, पीछे स्टेप्स किए थे, पिछले लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है इसी तरह ग्रामर जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली थ्रू FA के जरिए भी, बाय अप्लाइंग सिंपल लॉजिक विच कैन बी सीन इन द बुक में आप देख लें, या पहले आप दे चुके हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है ना, तो आप उसका FA बना लें, और फिर FA से बहुत ही आसानी से, क्योंकि FA के अंदर वो आपने स्टेट्स के लेबल दिए होते हैं ABCD करके, और एजेस के ऊपर आपने टर्मिनल्स दिए होते हैं, इनपुट सिंबल दिए होते हैं। तो फिर आप FA को देख के बड़ी आसानी से बस वो देखते जाएं और प्रोडक्शंस लिखते जाएं, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप FA बना लें उसका, और जब FA बन जाए और उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो कि A से B पे कुछ चीज़ें जा रही हैं, B से C पे कुछ चीज़ें जा रही हैं, और उसके अंदर स्टार्टिंग स्टेट भी होती है, तो आप शुरू कर दें। ए इम्प्लॉइज ए से ए लेकर वो जाता है जी बी पे, आप ऐसे कहते हैं। अल्लाह। तो इसका जो तरीकाकार है वो बुक में, यानी कि आप देखें, आपके लिए थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा कि खाम खा इसको लंबा कर दो। तो ज़रा देखें इसको, कंटेक्स्ट फ्री ज़रा बुक पढ़ने की याद डालें, बहुत आसान है, मिल जाएगा आपको। तो वो कह रहा है कि आपको अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, तो आप क्या करें, उस रेगुलर एक्सप्रेशन का FA बना लें। जब FA बन जाए तो उससे आप आराम से देख के फिर आप CFG बना लें। क्यों है? इसलिए कि तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं। शुरू का अगर आपको लेक्चर याद हो तो उसमें कुछ सर्कल दिखाए थे जी, पहले रेगुलर लैंग्वेज का एक सर्कल है, उसके ऊपर पता नहीं कोई कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का है, उसके ऊपर एनुमरेबल और इस तरह करके लैंग्वेजेस चलती जाती हैं, रिकर्सिव और इस तरह की सारी। एनीहाउ, तो रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का वो सर्कल है, जिसका मतलब ये है कि तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस
बाय डिफॉल्ट कंट्रैक्ट्स फ्री लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं। अच्छा जी, डेरिवेशन क्या है आपको पहले थोड़ा सा पता है, और फिर उसके अंदर एम्बिग्युइटी का कंसेप्ट क्या है अब हम वो देखने जा रहे हैं। डेरिवेशन क्या होती है, ये हमने जो पीछे की है ये वाली बात, ये सम स्टेप्स आर स्किप्ड हियर वाली, ये डेरिवेशन ही आपने की है। मैंने कहा था या डेरिवेशन होती कोई स्ट्रिंग आप किसी ग्रामर में से आपने पार्स करनी हो तो आप डेरिवेशन के थ्रू पार्स कर सकते हैं, या आप उसकी पार्स ट्री बना सकते हैं, सिंपली ट्री बना सकते हैं। तो ये डेरिवेशन या पार्स ट्री दो डिफरेंट एनोटेशंस हैं, काम एक ही है दोनों का। ये जो डेरिवेशन है या पार्स ट्री है, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है। जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है उसमें आप प्रोडक्ट जो भी स्ट्रिंग वगैरह जो भी चला रहे हैं उसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ही आप एक्सपेंड करते हैं। हर दफा आप लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को देखते जाते हैं और उसको एक्सपेंड करते जाते हैं। जिस तरह वो आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ी थी ना, वैसे ही है, सिर्फ लेफ्ट वाले को देखते जाते हैं। और राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को आप देखते हैं और उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, राइट साइड वाला। ये राइट साइड वाला भी जो है ये भी डेप्थ में ही जाता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है कि राइट साइड वाला आप नॉन टर्मिनल सेलेक्ट करते हैं। ये इसको कोई ब्रेड फर्स्ट सर्च ना कह देना, ब्रेड फर्स्ट सर्च इज डिफरेंट थिंग, वो हॉरिजेंटल उसकी डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट। ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है कि राइट वाला सिंबल को पकड़ते हैं और नीचे नीचे तक पहले राइट वालों को हैंडल करते हैं। तो ये भी एक किस्म की राइट मोस्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च है। एनी हाउ, तो दो तरह की डेरिवेशंस होती हैं, लेफ्ट मोस्ट LMD, RMD, राइट मोस्ट। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है जी, S गोज टू एक CFG दी हुई है, S गोज टू S प्लस S, और S गोज टू S मल्टीप्लाइड बाय S, और S गोज टू 0 1 2 3 एंड सो और करके दिया हुआ है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 3 4 और 9 भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस के साथ आपको पता चल गया कि ये कोई CFG है जिसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हैंडल हो रही है, और डिजिट्स हैं 0 to 9। अब एक ट्री जो है ना आपको ये दी गई है, अगर ये 1 + 2 + 3 लिखा हुआ हो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, S goes to S plus S according to this, according to ये मैं थोड़ा सा नोटेशन देख लूं, ये S plus S को यूज किया, ये आ गया जी S plus S, और फिर S के अंदर फिर S plus S को यूज कर दिया। हम लेफ्ट मोस्ट ही जाएंगे, आप पहले लिखते हैं कि S इज इक्वल टू S plus S आपने लिखा, ऐसे बनाया, लेकिन इसमें सिलेक्ट फिर आपने ये LS लेफ्ट मोस्ट सेलेक्ट कर लिया, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेड फर्स्ट, इसको फिर आपने कर दिया, ये S plus S आ गया, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया और S गोज टू ये 1 कर दिया, ये वाली सिलेक्ट कर ली, फिर आप इसी तरह वापस गए, ये प्लस था, या फिर S गोज टू 2 कर दिया, ये 2, ये वाला फिर एक्सपेंड कर दिया, ये तो ऑटोमेटिकली आ गए इस प्रोडक्शंस के तहत, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया। फिर अब लेफ्ट वाला और लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, अब ये भी हो चुका, यही है, फिर बचता है, फिर इसको सिलेक्ट किया और इसको एक्सपेंड कर दिया। ये जो ट्री है आपके पास, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है, डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री जो मर्जी कह दें, ये डेरिवेशन ट्री है। और यहाँ पे S गोज टू S प्लस S, फिर इसको आपने राइट वाला सेलेक्ट किया और इसके अंदर ये एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से फिर राइट वाला सेलेक्ट किया, ये एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद फिर राइट मोस्ट सेलेक्ट किया और इसको ये एक्सपेंड कर दिया, फिर राइट मोस्ट सेलेक्ट किया और इसको ये एक्सपेंड कर दिया। ये आपकी राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है, RMD ट्री। तो डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट भी होती है, राइट मोस्ट भी होती है, और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं,
लेकिन छोड़ें आप, अभी ये बीएस में इतनी गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, ये डेरिवेशन। अब आ गई बात एम्बिगुइटी की। एम्बिगुइटी का कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबली ये लास्ट पेज है। एम्बिगुइटी, अच्छा जी, एम्बिगुइटी को एड्रेस करने के लिए पहले तो हमने ये एक बनाई हुई है। बस एम्बिगुइटी ये होती है कि कोई कोई अगर के कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको दी हुई है, जैसे ये ग्रामर दी हुई है, उसमें से आप कोई स्ट्रिंग पास करें और उस स्ट्रिंग को एक से ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से उस स्ट्रिंग को उस ग्रामर में से पास किया जा सके, तो वो ग्रामर फिर क्या होती है, एम्बिगुअस कहलाती है। वो ग्रामर क्या कहलाती है, एम्बिगुअस कहलाती है। ले अभी अभी ये ज़हन में रखें, अभी देखें, ये ग्रामर दी हुई है एस इज गोज टू ए एस, और फिर एस ए, इसके अंदर एस जो है नॉन टर्मिनल है, और फिर एस गोज टू ए भी दी हुई है। स्ट्रिंग है ट्रिपल ए। अब ये ट्रिपल ए को इसी ग्रामर के तहत इस तरह भी बनाया जा सकता है, एस गोज टू ए एस, ये वाली कॉल करके, मैं नोटेशन ऑन कर लें, ये वाली ए एस यहाँ पे की, फिर एस गोज टू ए एस कर ली, और फिर एस गोज टू ए, ये वाला यूज कर लिया। ये इस तरह भी बन सकती है, एस गोज टू ए एस, एस गोज टू एस से यहाँ पे, और फिर एस गोज टू ए, इस तरह भी बन सकती है। एस गोज टू ये वाला एस से कर लें, ए एस कर लें, ए ऐसे, फिर ऐसे, तो चार मुख्तलिफ तरीकों से ये स्ट्रिंग इस ग्रामर में से पास की जा सकती है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो ऐसी ग्रामर एम्बिगुअस होती है। ऐसी ग्रामर क्या होती है, एम्बिगुअस होती है। और एम्बिगुअस ग्रामर को होना कोई अच्छी बात नहीं है, फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे जब आप मुख्तलिफ आगे पार्सिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो उसके अंदर आपकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, आपका लिखा हुआ है जी ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर वो आपकी ग्रामर उस के पीछे आपकी ग्रामर जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है, तो वो तो हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से आपको रिजल्ट दे देगी। तो ये अच्छी बात नहीं है, एम्बिगुअस ग्रामर होना बुरी बात है, इससे आपके रिजल्ट खराब होते हैं। तो ये अब मैं आगे चलते हुए ये क्लियर कर लूँ पहले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ए सी एफ जी इज एम्बिगुअस इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रिंग इन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर की लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग एटलीस्ट, कम अज कम एक स्ट्रिंग ऐसी हो, कम अज कम, ज्यादा तो हो सकती है, कम अज कम एक हो, ऐसी स्ट्रिंग हो हैविंग टू आर मोर डिस्टिंक्ट डेरिवेशन ट्रीज, जिसकी दो या उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट डेरिवेशन ट्रीज जैसे ये ऊपर बनी है, अगर वो उसकी हो, ट्रीज बन सकती हो, तो फिर वो ग्रामर क्या होती है, एम्बिगुअस होती है। तो फिर उस एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस करना होता है। क्या करना होता है उसको, अनएम्बिगुअस, उसके अंदर से एम्बिगुइटी रिमूव करनी होती है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे अब दी हुई है। ये ग्रामर थी एस इक्वल एस प्लस एस, एस मल्टीप्लाई बाय एस, और ये पैरेंथेसिस और ए, ये कोई ग्रामर है पीछे क्वेश्चन में से, ये भी एम्बिगुअस है। ये भी जब आप इधर रिकर्सिवली रिपीट करवाते हैं ना नॉन टर्मिनल को, तो उससे एम्बिगुइटी प्रोड्यूस होती है, ये भी ज़हन में रखें। आप कहेंगे सारा लेक्चर देख के एंड में आपने हमारे लेक्चर का सत्यानाश कर दिया कि लेफ्ट साइड पे जो टर्मिनल है उसको राइट हैंड साइड पे भी आप रिपीट करें तो उससे ज्यादातर केसेस में एम्बिगुइटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपका फिर क्वेश्चन बड़ा जायज है कि आप कहेंगे कि सारा आपने लेक्चर पढ़ाया और एंड में आपने खुद ही कह दिया कि पिछली सारी प्रैक्टिस जो थी ना वो एम्बिगुअस थी। हाँ भाई, उसमें अक्सर चीजें एम्बिगुअस थी, सारी नहीं। ज्यादातर जब आप इधर रिपीट करते हैं इसको, ये जो लेफ्ट साइड में टर्मिनल आ रहा, नॉन टर्मिनल आ रहा होता है, उसको राइट साइड पे भी, जैसे यहाँ एस प्लस एस है, इधर भी एस है, इधर भी एस है, तो एम्बिगुअस हो जाती है ग्रामर। तो एम्बिगुअस जब हो जाती है तो उसको अनएम्बिगुअस करना होता है। कैसे करेंगे, अब ये ग्रामर दी हुई है, आप ऐसे करेंगे कि उसमें से
आप जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखो एस इज इक्वल टू एस प्लस एस, तो ये एस लेफ्ट साइड पे तो सही है, फिर इधर एस आ जाता है, तो इसका मतलब इस एस को भी इधर एक्सपेंड करता हूँ, इधर भी, तो ये यहाँ से ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे एस एक्सपेंड हो रहा है, तो मुझे किसी एक डेरिवेशन पे नहीं रहने देगा, इसको मैं इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी, तो यहाँ पे फिर डेरिवेशन में मसला आएगा। इसलिए फिर कम से कम इसमें किसी एक नॉन टर्मिनल को किसी और नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर दें। कैसे? अब यहां लिखा हुआ एस गोज टू एस प्लस टी कर दें, ये राइट वाले को मैंने टी कर दिया, एस गोज टू एस प्लस टी, और इसी को फिर मैंने कह दिया और टी कर दे, और ये इधर से टी, इधर जो मैंने इधर इंट्रोड्यूस किया यहां भी कर दिया। एस गोज टू सिंपल टी भी हो सकता है और एस गोज टू एस प्लस टी भी हो सकता है, ये वाली हैंडल की। और इसी तरह फिर मैं कह रहा हूं ये टी जो है, अब ये टी गोज टू ये इस वाले टी क्रॉस एफ हो सकता है, ये टी क्रॉस एफ हो सकता है, ये वाली प्रोडक्शन हैंडल कर रहा हूँ एस क्रॉस एस की, टी क्रॉस एफ, और एफ में नया लाया तो एफ को यहाँ पे कर दिया, कनेक्शन नहीं रखना है इनका, ये एस की वजह से एस एस ये आपस में कनेक्शन भी था, तो ये टी की वजह से मैंने टी को फिर टी क्रॉस एफ किया, और फिर और एफ या टी सिंपल एफ भी हो सकता है, और फिर एफ को ये पैरेंथेसिस वाले को हैंडल कर, एफ गोज टू पैरेंथेसिस वाला एस और ए और ए। अब कोई ग्रामर ले लें, अब ये एक ही ट्री प्रोड्यूस करेगी, करते रहे आप, ये आप चेक करते रहे ये ग्रामर, और इसी तरह बुक में आप और भी एग्जांपल्स देखेंगे अनएम्बिगुअस ग्रामर्स की। अब ये दो ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेगी, एक ही स्ट्रिंग के लिए दो ट्रीज नहीं, एक ही स्ट्रिंग के लिए एक ही ट्री प्रोड्यूस करेगी। तो अनएम्बिगुअस कैसे की जाती है ग्रामर्स? नए नॉन टर्मिनल्स इंट्रोड्यूस करवा के, रिपीटिशन खत्म करके, सेम नॉन टर्मिनल की जो रिपीटेशन हो रही होती है उसको खत्म कर दिया जाता है। आगे एक मेथड भी आएगा, आप उसमें ज्यादा बड़ा अच्छा मेथड होगा, उसमें भी आप देखेंगे कैसे अनएम्बिगुएट किया जाता है। तो यहाँ ये बात खत्म होती है, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।